دیگر 40 سے زائد مالی بردار گاڑیاں 7 روز سے رکی ہوئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مندوری دھرنا مظاہرین سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہی ضلع کرم کے لیے اشیاء خوردنوش کا دوسرا قافلہ روانہ کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے پاکستان تحریک انصاف کو دو پیغام میں کہا کہ حکومت تو بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کر سکتی، یہ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ خود اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ نہروں کے معاملے پر حکومتی اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، دریا سندھ سے نئی نہروں کا معاملہ بے بنیاد ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کا مزید کہنا تھا کہ معاہدے کی موجودگی میں کوئی صوبہ کسی اور کا پانی نہیں لے سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ انہیں بنی گالہ منتقل ہونے کی پیشکش ہوئی تھی۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنی گالہ منتقل ہونے کی بات بانی پی ٹی آئی کی خواہشات ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا تعلق عدالت سے ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ہماری معیشت بتدریج سنبھل رہی ہے، اگر ملک میں امن ہو جائے تو ہم خود کفیل ہو جائیں گے۔ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، معیشت کے تمام آشاریے بہتری کی جانب جا رہے ہیں، کوشش جاری ہے کسی طرح سیاسی استحکام پیدا ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ترسیلات زر روکنے کی اپیل کا اثر اگلے 2-3 ماہ میں نظر آئے گا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ مالی سال 2022 میں ترسیلات زر 32 ارب ڈالرز تھی، جبکہ 2024 میں 27 ارب ڈالرز رہی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا مزید کہنا تھا کہ 2022 میں شرح نمو 6.5% اور 2024 میں شرح 2.4% سے بھی کم رہی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا مزید کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ترسیلات زر روکنے کی اپیل کا اثر اگلے 2-3 ماہ میں نظر آئے گا۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ پنجاب کی مختلف موٹر ویز پر دھند کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد M2 کو لاہور اسلام آباد سے کھول دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس سید عمران احمد نے بتایا کہ M3 لاہور سے جڑا والا تک کھول دی گئی ہے، جبکہ گجرانوالہ میں GT روڈ پر راہوالی، گکھڑ، وزیرآباد سے گجرات تک دھند میں کمی آئی ہے۔ گجرانوالہ ایکسپریس وے کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ جہلم، حافظ آباد اور گردونواں میں ٹریفک کی روانی بحال ہو چکی ہے۔ ترجمان موٹر ویز سید عمران احمد نے کہا کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ روڈ یوزرز دھند میں لین ڈسپلن کو یقینی بنائیں۔ شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ خبر شامل کریں گے کوئٹہ سے، جس کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں 4 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ چیف مائنز انسپیکٹر کے مطابق نواحی علاقے اسپین کارے سنجدی کے مقامی کوئلہ کان میں گزشتہ رات زہریلی گیس بھرنے کے باعث دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے باعث کان بیٹھ گئی، جس کے باعث 12 مزدور کان میں ہی پھنس گئے۔ حکام کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ اب تک 4 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ دیگر 8 کان کنوں کی نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تو دوسری جانب ریسکیو ٹیموں نے کان سے 3600 فٹ کا ملبہ بھی نکال کر راستہ کلیئر کر دیا ہے۔ ملبے کو بھاری مشینری کے ذریعے ہٹایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی دوسری لائن چھپانے اور ملبہ ہٹانے سے امدادی سرگرمیاں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے امید ظاہر کی ہے کہ ریسکیو ٹیمیں جلد اندر پھنسے کارکنوں تک پہنچ جائیں گی۔ یہاں آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ منڈی بہاؤدین میں مکان میں آتش گیر مادہ پھٹنے سے 4 خواتین اور ایک بچی سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤدین کے قصبے پھالیاں میں آتش بازی کے سامان میں دھماکے سے 6 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ واقعہ پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤدین کے علاقے کوٹ پھلے شاہ میں پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق مکان میں آتش بازی کا سامان تیار کیا جاتا تھا، جہاں آتش گیر مواد میں آگ لگنے سے دھماکہ ہوا، جس سے متاثرہ مکان اور اس سے ملحقہ مکان کی چھت گر گئی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ ملبے کے نیچے دب کر 4 خواتین اور ایک بچی سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق دھماکہ صبح
सवेरे हुआ, जिससे हमसाया मकान की एक खातून और एक बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। तमाम लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल फालिया और रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खबर शामिल करेंगे शहर काय से, जहां शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 शहरियों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे का मुकदमा थाना फैरोजाबाद में दर्ज किया गया। टैंकर ड्राइवर फरार और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 2 अफराद नामजद किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जुम्मे की सुबह पेश आए हादसे में 2 शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया था। कराची का मारूफ इलाका बनारस बाचा खान चौक पर सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके। सीवरेज का पानी सड़क पर खड़ा होने से रिहायशियों और दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहमीर राजपूत की इस रिपोर्ट में। यूं तो शहर कायद में बसने वाले शहरी इलाकों में बहते हुए सीवरेज के नाले और मेन होल खुले होने से परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं कराची जिला गरबी का मशहूर इलाका बनारस बाचा खान चौक की। बाचा खान चौक पर कई सालों से बहने वाला सीवरेज का नाला यहाँ के मकीनों के लिए आजमाइश बना हुआ है। क्या शहरी, क्या गुजरने वाला ट्रैफिक और क्या ही दुकानदार तबका, हर एक शख्स बाचा खान चौक पर नाला उबल पड़ने से शदीद जहनी अजियत का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है मोमनाबाद टाउन चेयरमैन और मुताल्लिका महकमों को कई बार दरख्वास्त देने के बावजूद नाले की सफाई या इसकी तामीर का आगाज नहीं किया गया। दुकानदारों का कहना है कि 2018 से ये नाला बह रहा है, अलबत्ता अभी तक ना तो टाउन चेयरमैन और ना ही यूसी चेयरमैन ने इस नाले को साफ करवाया है और ना ही इस मसले की तरफ तवज्जो दी है। इलाका मकीन और दुकानदार अपनी मदद आप के तहत ही इस नाले की सफाई करवाते हैं, अलबत्ता मुताल्लिका महकमे की जानिब से इस बहने वाली सीवरेज नाले पर ताहाल कोई काम नहीं किया गया। टाउन चेयरमैन जो है उसने भी कोई जो है ना कार्रवाई नहीं की। तो हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि खुदारा ख़वातीन और बच्चों पे रहम करे, जो उनको परेशानी होती है। सफाई किए तो थोड़ा सा जो है ना वो खुल गया है, लेकिन ये अभी दोबारा भर जाएगा और यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है। नाला फिर अपने मदद आप हम लोग खुद साफ करते हैं। हालांकि हम लोग यूसी में उधर एक दरख्वास्त दिया है, अरशद बुखारी को एक दरख्वास्त दिया है, चेयरमैन साहब को भी बोला है कि इसका कोई मुआयना करो, लेकिन रोज़ उसका गुजर है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा इलाका जितना भी है यह मुतासिर है पानी की वजह से। एसी बालाब सरान को सबको दरख्वास्त दे दिया है, किसी ने भी गौर नहीं किया। किसी पर जो कि तो इसके हमारा नाजिम साहब जो है यूसी चेयरमैन जो है इधर करीब रह रहा है, इस दर से उसका रोज़ाना गुजर हो रहा है पैसा जमा करके दुकानदारों से, मगर इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर से ये इसमें गोबर आ रहा है, सारा गन बला इसमें आ रहा है, इसी वजह से आए दिन परेशान हो। कई बार हम लोगों ने इसको दरखास्तें भी दी, हर गवर्नमेंट में दिए और टाउन वाले को भी दिए, लेकिन किसी ने कोई रवैया नहीं किया। उसकी वजह ये है कि कम्बेले वाले इंतज़ामिया से मिले हुए हैं, KMC वाले और चाहे वो TC वाले जितने भी है वो पैसे वसूल कर रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहे। पूरे अवाम को, पूरी पब्लिक इसकी तकलीफ है। जब अवामी नुमाइंदे ही आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आएँ तो इस तरह के हालात जो है वो पैदा होते हैं। यहाँ की आवाम का यही कहना है कि इस नाले को जो 2018 से हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, इसकी सफाई का मुस्तकिल कोई इंतज़ाम किया जाए। कैमरामैन फैदान के साथ शामिर राजपूत, NTN न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि मिस्र की कदीम जामिया अल अजहर ने पाकिस्तान में अपना कैंप कायम करने का फैसला कर लिया है। मुफ्ती आजम डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद अयात ने वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान इस अहम फैसले का ऐलान किया है, जिसे वज़ीर तालीम ने खुशाइंद करार दिया और कहा कि मुकम्मल हुकूमती हिमायत की यकीन दहानी भी करवाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। मिस्र की कदीमी जामिया अल अजहर ने पाकिस्तान में कैंप्स कायम करने का फैसला कर लिया है। मिस्र के मुफ्ती आजम डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद अयात ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कहा कि जामिया अल अजहर पाकिस्तान में एक कैंप्स कायम करने का इरादा रखती है, जिसका वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खैर मकदम किया और मुकम्मल हुकूमती ताउन का वादा किया। मिस्र के मुफ्ती आजम नज़ीर मोहम्मद अयात ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वफाकी वजीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जरूरी है कि लोग इस्लामाबाद की
حقیقی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھیں۔ ڈاکٹر نذیر محمد عیاق کا کہنا تھا کہ جامعہ الازہر میں 40% سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں اور جامعہ خواتین کی تعلیم کی پرزور حامی ہے۔ اس کے قیام کا مقصد اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عربی ثقافت کو بھی فروغ دینا ہے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ مفتی اعظم مظہر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے علماء کو مصر بھیجنا چاہیے تاکہ وہ دنیا کی قدیم ترین درسگاہوں میں سے ایک دوسرے کے تجربات اور تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان اور مصر دونوں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے حامل ممالک ہیں۔ انہوں نے جامعہ الازہر کو پوری اسلامی دنیا کے لیے بے حد اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا خواب ہے کہ وہ اس تعلیمی ادارے کا دورہ کرے جو اسلامی تعلیمات کا مرکز ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے مفتی اعظم مصر کو یہ بھی بتایا کہ وفاقی دارالحکومت کی تمام سرکاری اسکولوں میں عربی زبان کی کلاسز شروع کی گئی ہیں تاکہ اسلام آباد کی حقیقی تعلیمات سے آگاہی پیدا کی جا سکے۔ یاد رہے کہ 970 ایوسی میں کارہ میں قائم ہونے والی جامعہ الازہر کو اسلامی الحیات، فقہ، عربی علوم اور جدید علوم کے لیے مانا جاتا ہے۔ 1000 سال پر محیط وراثت کے ساتھ یونیورسٹی اسلامی فکر پر ایک کلیدی اتھارٹی ہے اور عالمی سطح پر طلباء کو راغب کرتی ہے۔ عالمی منظر نامے کا رخ کرتے ہیں، جہاں امریکی صدر جو بائیڈن کا اپنے دور اقتدار میں امریکی معیشت پر بیان دیتے ہوئے کہنا تھا کہ دسمبر 2024 میں امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 4.1% کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں 16.6 ملین نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ایک ریکارڈ ہے۔ 4 سال کی حکومت میں کورونا وبا کے باوجود حالات پر قابو پا کر حکومت نے نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے بلکہ ہیلتھ سیکٹر میں نمایاں کام بھی کیا، جس سے امریکیوں کے $160 ارب بچیں گے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ملک میں توانائی کی پیداوار امریکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ بات کریں گے لاس اینجلیس کی، جہاں آگ سے متاثرہ علاقوں میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات کے بعد کرفیو کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آگ لگنے سے کم از کم 10 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ لگنے سے 10,000 مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ طوفانی ہواؤں کی پیشگوئی اور آگ مزید پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ لاس اینجلیس جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ متاثرہ علاقے میں آگ سے ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ میں ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ جنوبی اور وسطی ریاستوں میں برفباری اور بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ رپورٹ کے مطابق برفانی طوفان کے باعث راستے، پروازیں اور تعلیمی ادارے بند ہیں، جبکہ امریکی ریاست ٹیکساس، اوکلاہوما، ارکانساس میں شدید برفباری اور بارش سے زندگی منجمد ہو کر رہ گئی۔ برفانی طوفان کے لیے مزید وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ کے شمالی علاقوں میں برفباری کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گیا ہے۔ شہری اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ بھر میں گزشتہ 3 روز سے تعلیمی ادارے بند ہیں، جبکہ ٹرینوں اور بسوں کی سروس بھی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے۔ شدید برفباری کے باعث کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو چکی ہے، متعدد ایئرپورٹس بند اور پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ میں محکمہ موسمیات نے آج 15 سالہ ریکارڈ سرد ترین رات ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برطانیہ میں آج کی رات پارہ -20 تک گر سکتا ہے۔ میٹ ڈپارٹمنٹ نے برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، ساؤتھ ویسٹ ویلز اور شمالی آئرلینڈ کے علاقوں کے لیے وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ مشرق وسطی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ اسرائیل نے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں شدید بمباری کی ہے، جس میں پاور اسٹیشن اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے یمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب میں جمعے کے روز یمن میں حوثی اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں ایک پاور اسٹیشن اور ساحلی بندرگاہیں شامل تھیں۔ اکتوبر 2023 میں غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے یمنی باغی گروپ نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے کے طور پر اسرائیل پر درجنوں میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جمعے کو اسرائیلی فوج نے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کیے گئے حملوں میں حدیدہ، راس عیسیٰ بندرگاہوں، حزیاز پاور اسٹیشن اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے تازہ ترین حملے اس وقت ہوئے جب فوج نے یمن سے داغے جانے والے 2 ڈرونز کو مار گرایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حوثی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کی قیمت چکا رہے ہیں
और इन्हें मजीद भारी कीमत उठाना पड़ेगी। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि चीन में अगले माह होने वाले एशियन विंटर गेम्स के लिए पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। नवे एशियन विंटर गेम्स 7 से 14 फरवरी तक चीन के शहर हरबेन में जारी रहेंगे। पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते में 2 एथलीट्स और 4 ऑफिशियल शामिल किए गए हैं। मोहम्मद करीम अल्पाइन स्कीइंग और मोहम्मद शबीर क्रॉस कंट्री के इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ साथ मोहम्मद करीम का इवेंट 8 फरवरी और 9 फरवरी, जबकि शबीर का इवेंट 8 से 12 फरवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के मुताबिक विंटर स्पोर्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कॉमोडोर अशर जमील को वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लड़कियों की तालीम और चैलेंजेस से मुतालिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। शुरका को आलमी कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि मुआशरे में तालीम का हुसूल बुनियादी हक है। मलाला यूसुफज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत रखती है। लड़कियों की तालीम वक्त का एक अहम चैलेंज है। लड़कियों को आज भी तालीम तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत में ख़त्म करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और ये भी कहा कि इरफा करीम ने तारीख बना डाली। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जिना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्त दायर कर दी है। बानी पीटीआई ने वकील के जरिए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। अदालत आलिया में दायर दरखास्त में कहा गया कि मुझे सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। उनके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। दरखास्त में सदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी और सेनेट का 14 जनवरी को तलब कर लिया है। इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इजलास में अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब कर रखा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। जिला कुरम में 3 माह से रास्तों की बंदिश ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रोजमर्रा की जरूरी अशिया और पेट्रोल की कमी से लाखों लोग परेशान हैं। मंदूरी में धरने की वजह से टलता पारा चिनार शाहरा अब भी बंद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला कुरम में 3 माह से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। कुरम में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात और अशिया खुर्दनोश की कमी पूरी न होने पर लाखों लोग परेशान हैं, जबकि पेट्रोल खत्म होने पर लोग दूर दराज का सफर भी पैदल तय कर रहे हैं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल पारा चिनार मरकजी शाहराह आज भी बंद है, जिसके बायस टल से जिला कुरम के लिए सामान ले जाने वाली दीगर 40 से ज्यादा माली बरदार गाड़ियाँ 7 रोज से रुकी हुई है। जिला इंतजामिया का कहना है कि मंदूरी धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही जिला कुरम के लिए अशिया खुर्दनोश का दूसरा काफिला रवाना कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 टोक पैगाम में कहा कि हुकूमत तो बानी पीटीआई को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि ये खुद अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं है। दरिया सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी का मजीद कहना था कि मुहायरे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई कहते हैं कि उन्हें बनीगाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई थी। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बनीगाला मुंतकिल होने की बात बानी पीटीआई की ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है।
बानी PTI की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि हमारी मईशत बतदरीज संभल रही है। अगर मुल्क में अमन हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मईशत के तमाम आशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। कोशिश जारी है किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख वकास अकरम ने कहा कि माली साल 2022 में तरसीलात ज़र 32 अरब डॉलर थी, जबकि 2024 में 27 अरब डॉलर रही हैं। शेख वकास अकरम का मजीद कहना था कि 2022 में शरह नमू 6.5% और 2024 में शरह 2.4% से भी कम रही हैं। शेख वकास अकरम का मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। पंजाब की मुख्तलिफ मोटरवेज पर धुंध की शिद्दत में कमी आ गई है। हद निगाह में बेहतरी के बाद M2 को लाहौर इस्लामाबाद से खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद ने बताया कि M3 लाहौर से जड़ावाला तक खोल दी गई है, जबकि गुजरावाला में GT रोड पर राहवाली, गखड़, वजीराबाद से गुजरात तक धुंध में कमी आई है। गुजरावाला एक्सप्रेस वे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जहलम, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में ट्रैफिक की रवानी बहाल हो चुकी है। तर्जुमान मोटरवेज सैयद इमरान अहमद ने कहा कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है। रोड यूजर्स धुंध में लेन डिसिप्लिन को यकीनी बनाएं। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें। उनका मजीद कहना था कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जिसके इलाके संजुदी में कोयले की कान में 4 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक नवाही इलाके स्पेन कारे संजुदी के मुकामी कोयला कान में गुज़िश्ता रात जहरीली गैस भरने के बायस धमाका हुआ। धमाके के बायस कान बैठ गई, जिसके बायस 12 मजदूर कान में ही फंस गए। हुकाम के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। अब तक 4 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दीगर 8 कानकुनों की निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो दूसरी जानिब रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट का मलबा भी निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया है। मलबे को भारी मशीनरी के जरिए हटाया गया। बताया जा रहा है कि बिजली की दूसरी लाइन छुपाने और मलबा हटाने से इमदादी सरगर्मियां ताखीर का शिकार हुई हैं। रेस्क्यू टीमों ने उम्मीद जाहिर की है कि रेस्क्यू टीमें जल्द अंदर फंसे कारकुनों तक पहुंच जाएंगी। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में मकान में आतिशगीर मादा फटने से 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन के कस्बे फालिया में आतिशबाजी के सामान में धमाके से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। वाक़या पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोट फले शाह में पेश आया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था, जहां आतिशगीर मवाद में आग लगने से धमाका हुआ, जिससे मुतासरा मकान और उससे मुलहका मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि मलबे के नीचे दबकर 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका सुबह सवेरे हुआ, जिससे हमसाया मकान की एक खातून और एक बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। तमाम लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया और रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खबर शामिल करेंगे शहर काय से, जहां शहीद मिलत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 शहरियों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे का मुकदमा थाना फैरोजाबाद में दर्ज किया गया। टैंकर ड्राइवर फरार और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 2 अफराद नामजद किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जुम्मे की सुबह पेश आए हादसे में 2 शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया था। कराची का मारूफ इलाका बनारस बाचा खान चौक पर सेवरेज के मसाइल हल ना हो सके। सेवरेज का पानी सड़क पर खड़ा होने से रिहायशियों और दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहमीर राजपूत की इस रिपोर्ट में।
यूं तो शहर कायद में बसने वाले शहरी इलाकों में बहते हुए सीवरेज के नाले और मेन होल खुले होने से परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं कराची जिला गरबी का मशहूर इलाका बनारस बाचा खान चौक की। बाचा खान चौक पर कई सालों से बहने वाला सीवरेज का नाला यहाँ के मकीनों के लिए आजमाइश बना हुआ है। क्या शहरी, क्या गुजरने वाला ट्रैफिक और क्या ही दुकानदार तबका, हर एक शख्स बाचा खान चौक पर नाला उबल पड़ने से शदीद जहनी अजियत का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है मोमिनाबाद टाउन चेयरमैन और मुताल्लिका महकमों को कई बार दरख्वास्त देने के बावजूद नाले की सफाई या इसकी तामीर का आगाज नहीं किया गया। दुकानदारों का कहना है कि 2018 से ये नाला बह रहा है, अलबत्ता अभी तक ना तो टाउन चेयरमैन और ना ही यूसी चेयरमैन ने इस नाले को साफ करवाया है और ना ही इस मसले की तरफ तवज्जो दी है। इलाका मकीन और दुकानदार अपनी मदद आप के तहत ही इस नाले की सफाई करवाते हैं, अलबत्ता मुताल्लिका महकमे की जानिब से इस बहने वाली सीवरेज नाले पर ताहाल कोई काम नहीं किया गया। टाउन चेयरमैन जो है उसने भी कोई जो है ना कार्रवाई नहीं की। तो हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि खुदारा ख़वातीन और बच्चों पे रहम करे, जो उनको परेशानी होती है। सफाई किए तो थोड़ा सा जो है ना वो खुल गया है, लेकिन ये अभी दोबारा भर जाएगा और यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है। नाला फिर अपने मदद आप हम लोग खुद साफ करते हैं। हालांकि हम लोग यूसी में उधर एक दरख्वास्त दिया है, अरशद बुखारी को एक दरख्वास्त दिया है, चेयरमैन साहब को भी बोला है कि इसका कोई मुआयना करो, लेकिन रोज़ उसका गुजर है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा इलाका जितना भी है यह मुतासिर है पानी की वजह से। एसी बालाब सरान को सबको दरख्वास्त दे दिया है, किसी ने भी गौर नहीं किया। किसी जो कि तो इसके हमारा नाजिम साहब जो है यूसी चेयरमैन जो है इधर करीब रह रहा है, इस दर से उसका रोज़ाना गुजर हो रहा है पैसा जमा करके दुकानदारों से, मगर इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर से ये इसमें गोबर आ रहा है, सारा गन बला इसमें आ रहा है, इसी वजह से आए दिन परेशान हो। कई बार हम लोगों ने इसको दरखास्तें भी दी, हर गवर्नमेंट में दिए और टाउन वाले को भी दिए, लेकिन किसी ने कोई रवैया नहीं किया। उसकी वजह ये है कि कम्बेले वाले इंतज़ामिया से मिले हुए हैं, KMC वाले और चाहे वो TC वाले जितने भी है वो पैसे वसूल कर रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहे। पूरे अवाम को, पूरी पब्लिक इसकी तकलीफ है। जब अवामी नुमाइंदे ही आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आएँ तो इस तरह के हालात जो है वो पैदा होते हैं। यहाँ की आवाम का यही कहना है कि इस नाले को जो 2018 से हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, इसकी सफाई का मुस्तकिल कोई इंतज़ाम किया जाए। कैमरामैन फैदान के साथ शामिल राजपूत, NTN न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि मिस्र की कदीम जामिया अल अजहर ने पाकिस्तान में अपना कैंप कायम करने का फैसला कर लिया है। मुफ्ती आजम डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद अयात ने वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान इस अहम फैसले का ऐलान किया है, जिसे वज़ीर तालीम ने खुशाइंद करार दिया और कहा कि मुकम्मल हुकूमती हिमायत की यकीन दहानी भी करवाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। मिस्र की कदीमी जामिया अल अजहर ने पाकिस्तान में कैंप्स कायम करने का फैसला कर लिया है। मिस्र के मुफ्ती आजम डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद अयात ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कहा कि जामिया अल अजहर पाकिस्तान में एक कैंप्स कायम करने का इरादा रखती है, जिसका वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खैर मकदम किया और मुकम्मल हुकूमती ताउन का वादा किया। मिस्र के मुफ्ती आजम नज़ीर मोहम्मद अयात ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वफाकी वजीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जरूरी है कि लोग इस्लामाबाद की हकीकी तालीमात को समझने के लिए अरबी जबान सीखे। डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद अयात का कहना था कि जामिया अल अजहर में 40% से जायद तालिबात ज़ेर तालीम है और जामिया खवातीन की तालीम की पुरजोर हामी है। इसके कयाम का मकसद इस्लामी तालीमात के साथ साथ अरबी सकाफत को भी फरोग देना है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जा सके। मुफ्ती आजम मजहर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को अपने उलमा को मिस्र भेजना चाहिए ताकि वो दुनिया की कदीम तरीन दरसगाहों में से एक दूसरे के तजुर्बात और तालीमात से मुस्तफीद हो सकें। वफाकी वजीर बराए तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र दोनों दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के हामिल ममालिक हैं। उन्होंने जामिया अल अजहर को पूरी इस्लामी दुनिया के लिए बेहद अहम करार देते हुए कहा कि उनका ख्वाब है कि वो इस तालीमी इदारे का दौरा करे जो इस्लामी तालीमात का मरकज है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुफ्ती आजम मिस्र को ये भी बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत की तमाम सरकारी स्कूलों में अरबी जबान की क्लासेस शुरू की गई हैं ताकि इस्लामाबाद की हकीकी तालीमात से आगाही पैदा की जा सके। याद रहे कि 970 अयूसी में कारा में कायम होने वाली जामिया अल अजहर को इस्लामी अल हयात, फिक़ा, अरबी उलूम और जदीद उलूम के लिए माना जाता है। 1000 साल पर मोहित विरासत के साथ यूनिवर्सिटी इस्लामी फिक्र पर एक कलीदी अथॉरिटी है और आलमी सतह पर तुलबा को राग़िब करती है।
आलमी मंजरनामे का रुख करते हैं, जहां अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने दौरे इक़्तिदार में अमरीकी मईशत पर बयान देते हुए कहना था कि दिसंबर 2024 में अमरीका में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। सदर जो बाइडन का कहना है कि उनके दौर में 16.6 मिलियन नए रोजगार के मौके पैदा करना एक रिकॉर्ड है। 4 साल की हुकूमत में कोरोना वबा के बावजूद हालात पर काबू पाकर हुकूमत ने न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए बल्कि हेल्थ सेक्टर में नुमाया काम भी किया, जिससे अमरीकियों के 160 अरब डॉलर बचेंगे। जो बाइडन ने मजीद कहा कि मुल्क में तवानाई की पैदावार अमरीकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बात करेंगे लॉस एंजलिस की, जहां आग से मुतासर इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुतासर इलाकों में लूटमार के वाकयात के बाद कर्फ्यू का फैसला कर लिया गया। आग लगने से कम 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने से 10,000 मकानात और दीगर इमारतें तबाह हो चुकी हैं। तूफानी हवाओं की पेशगोई और आग मजीद फैलने का खदशा भी जाहिर किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि लॉस एंजलिस जंगजदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। मुतासर इलाके में आग से हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। अमेरिका में एक तरफ आग है और दूसरी तरफ बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक बर्फानी तूफान के बायस रास्ते, परवाजें और तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि अमरीकी रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसास में शदीद बर्फबारी और बारिश से जिंदगी मुंजमद होकर रह गई। बर्फानी तूफान के लिए मजीद वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। बरतानिया के शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस मामूलाते ज़िंदगी मुतासर हो गया है। शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बरतानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया भर में गुज़िश्ता 3 रोज से तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि ट्रेनों और बसों की सर्विस भी ताखीर का शिकार हो चुकी है। शदीद बर्फबारी के बायस कई इलाकों में बिजली गायब हो चुकी है। मुतादिद एयरपोर्ट्स बंद और परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। बरतानिया में महकमा मौसमियात ने आज 15 साल रिकॉर्ड सरतरीन रात होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरतानिया में आज की रात पारा -20 तक गिर सकता है। met डिपार्टमेंट ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट, वेल्स और शुमाली आयरलैंड के इलाकों के लिए वार्निंग भी जारी कर दी है। मशरिक़ वस्ता के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं कि इजराइल ने यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में शदीद बमबारी की है, जिसमें पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने यमन के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में जुम्मे के रोज़ यमन में हौसी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें एक पावर स्टेशन और साहिली बंदरगाहें शामिल थीं। अक्टूबर 2023 में गजा में जंग के आगाज़ के बाद से यमनी बागी ग्रुप ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के के तौर पर इजराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जुम्मे को इजरायली फौज ने यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में किए गए हमलों में हदीदा, रास ईसा बंदरगाहों, हुजियाज पावर स्टेशन और फौजी तंजीबात को निशाना बनाया। इजराइल के ताज़ा तरीन हमले इस वक्त हुए जब फौज ने यमन से दागे जाने वाले 2 ड्रोन्स को मार गिराया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हौसी इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं और इन्हें मजीद भारी कीमत उठाना पड़ेगी। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि चीन में अगले माह होने वाले एशियन विंटर गेम्स के लिए पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। नवे एशियन विंटर गेम्स 7 से 14 फरवरी तक चीन के शहर हरबेन में जारी रहेंगे। पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते में 2 एथलीट्स और 4 ऑफिशियल शामिल किए गए हैं। मोहम्मद करीम अल्पाइन स्कीइंग और मोहम्मद शबीर क्रॉस कंट्री के इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ साथ मोहम्मद करीम का इवेंट 8 फरवरी और 9 फरवरी, जबकि शबीर का इवेंट 8 से 12 फरवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के मुताबिक विंटर स्पोर्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कॉमोडोर अशर जमील को शेफ डी मिशन मुकर्रर कर दिया गया है। मोहम्मद अब्बास बतौर कोच और इस्मा अकरम बतौर सेफ गार्ड ऑफिशियल दस्ते के साथ होंगी। टीम में पाकिस्तानी सफारत खाने की ऑफिशियल राबिया नासिर को एथलीट अटैची मुकर्रर कर दिया गया है।
आपको बताएं कि बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और साबिक कप्तान तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तमीम इकबाल ने दूसरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इससे कबल जुलाई 2023 में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान करके 24 घंटे बाद फैसला वापस ले लिया था। क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने बयान में कहा कि काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहा और अब ये मेरे इंटरनेशनल करियर का इख्तिताम है। इस हवाले से काफ़ी अरसे से सोच रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि अब जब चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट करीब है तो मैं अपने आप को डिस्कस नहीं करवाना चाहता। एक लंबे अरसे से BCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुद को अलग कर लिया था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था रिटायरमेंट या खेलने का फैसला किसी भी एथलीट या क्रिकेटर का ज़ाती होता है। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। उर्दू अदब के मारूफ शायर और मिजाह निगार इब्न इंशा को दुनिया से बिछड़े 47 बरस बीत गए। इब्न इंशा के कलाम आज भी चाहने वालों में सहर तारी कर देते हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। उर्दू अदब के हर फन मौला, अफसाना निगार और मारूफ शायर इब्न इंशा के मद्दाह आज इनकी 47वीं बरसी मना रहे हैं। इब्न इंशा 27 जून 1927 को भारत के सूबा पंजाब में पैदा हुए। इनका असल नाम शेर मोहम्मद खान था। इब्न इंशा की पहचान मिज़ा निगार और सफरनामा निगार की हैसियत से है, लेकिन वो एक मुनफरिद शायर भी थे। वो पाकिस्तान के मुतादिद कौमी रोजनामों में कॉलम निगारी भी किया करते थे। इन्होंने रेडियो पाकिस्तान और वजारत सकाफत में भी काम किया। इब्न इंशा ने मुतादिद सफरनामे भी तहरीर किए जो कि बेपनाह मकबूल हुए, जिनमें चलते हो तो चैन को चलिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, आवारा गर्द की डायरी और दुनिया गोल है काबिल जिक्र हैं। इब्न इंशा ने उर्दू अदब के लिए सफरनामे, तर्जुमे और शायरी पर मबनी तसनीफ का वसी ज़ख़ीरा छोड़ा। उर्दू अदब का मोतबर नाम इब्न इंशा 11 जनवरी 1978 को अलालत के बाइस लंदन में इंतकाल कर गए।